मैं कहीं सेमिनार ले रहा था तो इस्लाम की मैं तारीफ किया हूं, उसको पकड़ लिया, ये पाकिस्तानी मदरसा नहीं है, मौलाना नहीं पढ़ा रहा है। अरे चाचा तुमको क्या पता, प्रीस्ली अप्रोच में आदमी मेहनत करता हुआ बहुत दिखाई पड़ता है, उसको अचीव कुछ नहीं होता। सेंटली अप्रोच में वो हो सकता है मेहनत कम करे, उसकी अचीवमेंट ज्यादा होती है। ये सेंटली अप्रोच है क्या? आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ी, तो मॉडर्न इंडिया एक वर्ड है ना, दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक मॉडर्न एक इंडिया। तो जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ तो ऐसा पता चलेगा कि आप कहें कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम एंशिएंट एंड मेडिवल, है ना। मॉडर्न इंडिया मतलब क्या? यू कंप्लीटेड मॉडर्न इंडिया। तो व्हेन यू कंप्लीटेड मॉडर्न इंडिया, देयर शुड बी सर्टेन थिंग्स व्हिच शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। आपने कहा मॉडर्न वर्ल्ड, can you tell me the important features of modern world which separates modern world from pre-modern? ट्राई कर लो, चलो तुम ही बता दो, उसके ऊपर हंस रही हो बैठ के पीछे से, ट्राई कर लो। इतना भी क्या हंसना कि फंस गया बेचारा आगे बैठा हुआ। मॉडर्न वर्ल्ड, जैसे एक वर्ड आया मॉडर्न वर्ल्ड, तो कभी कुछ फील किया है अलग सा कि मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब ये क्या? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं कह सकते, बिकॉज इवन discovery of fire was also a technological advancement. Pre-modern world was not aware about, it's not that they were not aware about technology. Modern and pre-modern, the biggest difference is कि modern world is the age of machine. The biggest dividing line, अगर आपसे पूछा जाए कि which year is the dividing line between pre-modern and modern, that is 1750. So when you say modern world, pre-modern, and modern, so the first difference between pre-modern and modern is कि in pre-modern world polity mainly monarchy, पूरी दुनिया में तुम्हें मोनार्की मिलेगी, मोनार्की, मेनली मोनार्की। मोनार्की के अलावा भी कई सारे रूल्स थे, ओलिगार्की भी थी, बट मेनली मोनार्की। रशिया के राजा को क्या बोलते थे? जार। जार। मुगलों को क्या बोलते थे? बादशाह। मेनली मोनार्की। प्री मॉडर्न पॉलिटी वॉज मेनली मोनार्की। मॉडर्न पॉलिटी parliamentary form of government. This parliament system was not present in pre-modern. It's a modern phenomena, parliamentary form of government. This is the first thing which should strike in your mind कि modern मतलब यार modern political order. What is the main thing of modern political order? Parliament. Society, privileged classes, privileged. Society, privileged classes. There were certain classes which had privileges by birth. कुछ ऐसे क्लास थे जिनको जन्म से प्रिविलेज मिला हुआ था. Priests and nobles in entire world. Today you have a egalitarian society based on the principle of equality. And the biggest difference, biggest in pre-modern world, what was the constitution? Religion was the constitution. Religion, Quran, Bible, Vedas, they were called as Aparushe. Aparushe means not written by human being, written by God. And if they were written by God,
So God will have a representative on this earth to implement that book. So king was called as representative of God. Divine right. So Ashoka takes the title of Devanam Piyadasi, beloved of God. Gupta rulers took the title of Param Bhagavad. The medieval rulers of India took the title of Jille Ilahi, shadow of Allah. Mr. Modi is not Jille Ilahi. He is Jille Jamhuriyat. Jamhuriyat means people, because today we have man-made constitution, and the story of this man-made constitution starts from United States of America, 1787. So the moment you say modern, that means now this is called as old order, and this is called as new order. So the moment you will say modern India, modern, that means that when you finish modern India, you will be very clear that how India shifted from monarchy to parliament. The moment you will say modern India, you will immediately understand how these privileged classes turned into the rule of law and equality before law. When you say modern India, you will understand how we got man-made constitution. This is the second requirement of UPSC, approach. Approach of humanity. What is the first requirement? Wisdom, which you have to develop. अभी मैं बाहर खड़ा हुआ था, तो वो जो साहब अभी हमारे साथ आए थे, तो उन्होंने मैं दो लोगों के बारे में बताया, आईटी के लोगों के बारे में, कि एक साहब टॉपर थे, एक मीडियोकर थे. जो मीडियोकर थे उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस में हो गया. उसके पीछे सिर्फ एक कहानी है, सिर्फ. ऐसा नहीं कि सारे आईआईटी के लोगों का सिलेक्शन हो जाता है. यूपीएससी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक अलग डिमांड है. उसकी पहली डिमांड है विजडम. भारत में तीन ही लोग राजा हैं, एक पीएम, एक सीएम, एक डीएम. ये इसको बोलते हैं अप्रोच. When you said I have completed modern India, you have understood this story. Which story? How India shifted from monarchy to new political order. How India shifted from privileged society to new social order. How India shifted from religious constitution to man-made constitution. ये है modern India. क्योंकि अगर तुम ये समझते हो, अगर तुम समझते हो, तो तुम इंप्लीमेंट कर ले जाओगे. स्टडी टू फॉर व्हाट? स्टडी टू लर्न. व्हाई? टू इंप्लीमेंट. यूपी, बिहार, सीरिया, इराक ऑफ इंडिया. Syria suffering from civil war. Syria suffering from civil war. Why? 13% Shia. 13% Shia. 78% Sunni. 78% Sunni. The polity of Syria is in the hand of Shia. The polity of Syria is in the hand of Shia. So all the economic benefit of Syria is going in the hand of Shia. Polity is the guardian of economy. And this is the pain for Sunnis. UP? Same story. Same. You just saw the elections in UP. Brahmin Mahasabha, Kshatriya Mahasabha, Kayasth Mahasabha.
मुस्लिम महासभा, so if BJP will come into power, a particular section will get all the contracts, they will die for it. पॉलिटिकल पार्टी के दो समर्थक होते हैं, एक लड्डू खाने वाले, एक मलाई खाने वाले। लड्डू खाने वाले ये भावुक लोग होते हैं, रोते हैं, भैया हमारी पार्टी हार गई, तुम्हारे पापा ने बनाई थी? नहीं नहीं भैया। ऐसे ऐसे बहस करते बाहर, कोई फालतू में पर्चा भर रहे हैं, 1 रुपया नहीं मिलेगा। वो विधायक जीतने के बाद बोलेगा कि दुबे जी ये आपकी जीत है। दुबे जी 24 इंच की साइकिल लिए खुश है कि भैया आए और मेरे कंधे पे हाथ रखे, और कहाँ हाथ रखे? नहीं, बस कंधे पे ही रखे। सीरिया में क्या नहीं है, लेकिन ये चीज तुम्हें यूएस में नहीं मिलेगी। अमेरिका इज फॉर अमेरिकन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, सोसाइटी हैज चेंज्ड। सोसाइटी इज डोमिनेटेड बाय 3 क्लासेस। विच 3? Capitalist class, middle class, working class. These 3 classes have lost the old identities. Now they have a new identity, the identity of a nation. Who is Bill Gates? American. Who is Jack Ma? Chinese. So if you want to end, if you want to control casteism, communalism, what do you have to do? You have to promote industrialization in UP. What will happen because of that? Economy will change. The change in economy will lead to the change in society. This is the second requirement of UPSC, approach. ऐसे नहीं पढ़ना। कुछ लोग आते हैं, सर किताब बता दो सर। क्यों? क्या करोगे? पढ़ेंगे सर, पिछले 16 साल से तो पढ़ ही रहे थे, क्या बिगाड़ लिए? नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, वो हमें बाबा ने कहा था कि तुम 17 साल के बाद ही सक्सेसफुल हो गए। आज मैं क्लास ले रहा था, एक साहब बैठे हुए थे, आगे बैठे थे। क्या आपको लगता है मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाएगा? मैंने कहा मुझे लगने लगेगा अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। तो मोती की अंगूठी पहन रखी थी उन्होंने। मैंने किस ग्रह की वजह से पहने हो इसको? अरे बोले अम्मा ऐसे पहना दी। हाँ चलो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा तो माइंड अवेकेंड होना चाहिए ना। माता जी ने प्रेम में पहना दिया, कोई बात नहीं, तुम्हारा तो दिमाग जिंदा होना चाहिए। पत्थर पहनना बुरा नहीं है, तुम्हें तो पता हो कि किस प्लैनेट, उसकी पोजीशन वक्री है, किसके साथ बैठा है, किस हाउस में है, किस राशि का है, ये तो पता कर लेते। नहीं बाद में पता कर लेंगे, कब? 3024 में। और यही पहन के इंटरव्यू बोर्ड में चले आओगे और वो बोर्ड मेंबर वहीं तुमसे पूछ लेगा, ओह मिस्टर सिंह, यू आर वेयरिंग पर्ल इन योर हैंड। अरे सर फिर वो पकड़ेगा और कम से कम 4 बार लड़ाएगा दीवार पे। गेट आउट फ्रॉम हियर यू रास्कल। अप्रोच। The first requirement is wisdom. The second requirement is approach. क्यों पढ़ना है? इकोनॉमी क्यों पढ़ना है? क्यों अरब कंट्रीज इजराइल के सामने सर झुकाती हैं? क्योंकि the most important phenomena of modern economy is capitalist economy, rotation. They have all the energy,
बट हु रोटेट्स देयर वेल्थ? ज्यूज। सारी बैंकिंग सिस्टम किसके हाथ में? ज्यूज। ये समझना है, ये सेकेंड रिक्वायरमेंट। तीसरा रिक्वायरमेंट, थर्ड, डायरेक्शन। अब कृष्ण का इतना नाम है, भगवान कृष्ण, क्योंकि किसी भी फील्ड में जो उनका अप्रोच है ना, तरीका, और लड़ाई सिर्फ ताकत के बल पर नहीं जीती जाती, स्ट्रैटेजी। प्रिपरेशन इज इक्वल टू प्रायोरिटी प्लस प्लानिंग। पुतिन साहब ने गेम शुरू किया है कपिल शर्मा के साथ। जेलेंस्की इज कपिल शर्मा ऑफ यूक्रेन। इन्होंने सोचा था 10 दिन में वॉर खत्म हो जाएगा, वॉर 20 दिन से ज्यादा हो गया। अब भारत से कह रहे हैं कि 27% हम पे तेल ले लो हमसे, कुछ करो भैया, ये वॉर रोको। मोदी ने कहा अभी रोकते हैं, हमारा भी तो कुछ करो। बोले आपका क्या करना? बोले 24 में चार S-400। अरे बोले वो थोड़ी 400 सीट, तो तुम क्रीमिया ले लिए तो हमें कम से कम पीओके पे तो सपोर्ट करो, पीओके इंटीग्रल पार्ट। तो पुतिन ने कहा मैं तो करूंगा यार, वो तुम्हारी मिसाइल उधर पाकिस्तान में गिर गई, तुम टेंशन मत लो। तुमसे कोई पूछेगा कह देना वो पुतिन ने फेंकी थी, टप्पा खा के आ गई यहाँ पे हमने। बोले लगे यार 2-3 मिसाइल तुम भी मार दो यार और हमारा नाम ले लेना। इंटरनेशनल रिलेशन इज नॉट लाइक पर्सनल रिलेशन ऑफ कॉमन पीपल, कि तुमने मुझे पेन नहीं दिया था हम तुमसे बात नहीं करेंगे। The relation of aristocracy is based on a very simple formula. There are no permanent friends, no permanent enemies, only permanent interest.